Hello students, so here we are with the solutions of JEE Main Test 73 uploaded on NTA Abhyas app today, right? Now, students, this was a relatively an average, above average paper. It's not an easy one. So, relatively tough questions if we see, though there are only three questions जिसको मुझे relatively tough category में place करना रहा. But again, the number of easier questions is relatively less. तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफी प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जहाँ पे कैलकुलेशन भी डिमांडिंग है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है सॉल्व करना. तो ओवरऑल आई विल रेट दिस पेपर एज मीडियम प्लस, not towards the easier side, not towards the easier side, and a good score will be somewhere around 60 and more, right? तो डिस्कशन पे मूव करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन, right? The first question, it says, imagine an atom made up of a proton and a hypothetical particle of double the mass. It is double the mass of the electron and charge same. Apply Bohr's theory and consider all possible transition to the first excited level. First excited level मतलब n equals to 2 और longest wavelength निकालना. We know that longest wavelength जो होगा फिर वो 3 से 2 का होगा because least energy पे focus करना है. So अब accordingly, if we recall the energy formula for the nth orbit, the energy formula, it is minus me to the power 4. It is minus me to the power 4 upon 8 epsilon naught square h square into z square by n square. Ultimately we can see that ये जो energy है ये m के proportional, mass के proportional आ रहा है जब Bohr's theory derive किया जाता है. तो when we say usually आपका जो E का formula अपन nth orbit में लिखते हैं, that is minus hcr z square by n square. बट इन दिस केस आपका जो nth ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डबल मास का लेना है, तो दैट विल बी माइनस 2hcr z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला टू बी यूज्ड, राइट? अब सिंस हाइड्रोजन की बात हो रही है तो z का वैल्यू तो 1 हो जाएगा. और फर्दर अपन एनर्जी ट्रांजिशन देखें तो सिंस फर्स्ट एक्साइटेड लेवल एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लीस्ट एनर्जी, तो इट विल बी फ्रॉम E3 to 2. So effectively E3 to 2 will be given by this hc by lambda, and that is equals to 2hcr into 1 by n square. This is 1 by 2 square minus 1 by 3 square. So accordingly this comes out as 1 by lambda, and that is 2r. और ये कैलकुलेशन में आपका वैल्यू जो आएगा that will be 5 by 36. I think it's 9 and 4, 36, right? So this comes out as this lambda, it comes out as 18 upon 5r, right? This lambda is 18 upon 5r. That is the correct answer given in option C. सो इट्स अ गुड क्वेश्चन हियर, जहां पे जो कन्वेंशनल थियोरी है उसमें स्लाइड सा चेंज किया, तो आपको एक्चुअल ओरिजिनल फॉर्मूला जो आप एनर्जी का पढ़ते हैं वो रिकॉल करना था. उससे nth ऑर्बिट की नई एनर्जी फॉर्मेशन निकालनी थी, दिस वन जो ट्वाइस आया है बिकॉज मास की डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, एंड देन दैट एनर्जी ट्रांजिशन फ्रॉम 3 to 2 का फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो इट्स अ गुड क्वेश्चन हियर. राइट, नेक्स्ट. A spherical ball A of mass 4 kg moving along straight line strikes another ball B 1 kg at rest. After collision V1 V2 जो है वो 30 and 60 डिग्री पे चले गए with the original direction. Now this is a routine problem कि अगर initial direction of motion अपन यहाँ पर ऐसे ले रहे हैं, तो after collision एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, and the velocities they are V1 and V2 making with the original direction this angle as 30 degree and 60 degree. राइट, दिस इज V1 एंड दिस इज V2, एंड ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में था. अब ऐसे केस में सिंस दे आर ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, वी कैन अप्लाई इनिशियल मोमेंटम मतलब कंजर्वेशन. अगर अप्लाई करें तो इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इज कंजर्व टू फाइनल, एंड सिमिलरली मोमेंटम कंजर्वेशन कैन सेपरेटली बी अप्लाइड फॉर द वाई डायरेक्शन एज वेल. तो P इनिशियल इन y एंड P फाइनल इन y इज कंजर्व्ड. तो इन इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियली इन y डायरेक्शन द मोमेंटम इज 0, एंड फाइनली अगर हम y डायरेक्शन में मोमेंटम देखें तो अ बॉल ऑफ मास 4 kg, तो A का मास 4 है, तो मास इंटू V1 sin 30 माइनस, बिकॉज V2 का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट होगा, वो नीचे की तरफ आएगा, और इसका मास जो है दैट इज 1, एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय V2 sin 60. So accordingly, this initial momentum in y is 0 and this term is the final momentum in y direction. तो यहां से अपन सॉल्व करें
तो दिस वी नीड टू फाइंड v1 by v2, राइट? तो v1 अपॉन v2 का वैल्यू जब निकालेंगे तो दैट कम्स आउट एज sin 60, ये √3/2 divided by 4 sin 30, this is 4 into sin 30 half, so this comes out as √3/4, right? तो v1 upon v2 जो आ रहा है वो √3/4 आ रहा है, which is given in option A, तो first option आ रहा है. तो it was an easy question, just basic momentum conservation in y direction. Next, a body of mass 1 kg starts moving from rest at time 0 along a circular path, radius given है और kinetic energy the function of time दे रखा है. Now, when kinetic energy is a function of time, we can write half mv square is 2t square. Mass का value we are given 1 kg. तो यहां से v square का value 4t square आ रहा है, तो v का function आपका 2t मीटर पर सेकंड आ गया. That's one relation. Now, we know that tangential acceleration is the rate of change of speed. तो इस speed का rate of change निकालूंगा तो वो rate of change 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा. तो tangential acceleration is 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So this statement is wrong. Then power of all the forces at time 2 seconds. अब जब circular motion है तो we know that power जो होता है वो सिर्फ tangential forces का ही होता है, because centripetal forces तो center की तरफ है, velocity के perpendicular है, तो power जो होगा वो F dot V से निकालना है. तो ये F dot V जब हम करेंगे तो it should be precisely the tangential forces dot the velocity vector, because centripetal का velocity से dot 0 हो जाएगा. तो पावर केवल टेंजेंशियल फोर्सेस का आना है. नाउ दिस ft कैन बी रिटन एज m into at, एंड वेलोसिटी वी कैन राइट, वेलोसिटी फंक्शन हमें पता है इज 2t. देन वी हैव मास इज 1 kg, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 2, एंड ये 2t है, दैट कम्स आउट एज 4t, और हमें पावर टाइम 2 सेकेंड्स पे निकालना है. यहां टाइम 2 सेकेंड्स प्लेस कर रहा हूं, तो दैट कम्स आउट एज 8 वॉट्स. इट इज ऑप्शन बी. ऐसी बाकी केसेस भी आप चेक कर सकते हैं टेंजेंशियल फोर्स एंड ऑल वगैरह के हिसाब से, बट ऑप्शन बी जो है वो अकॉर्डिंगली आपका सही आएगा. तो ओवरऑल रूटीन क्वेश्चन फ्रॉम सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट पे चलते हैं. A potential difference of 220 volt is applied across a rheostat 12,000 ohm. Voltmeter का resistance हमें दे रखा है, and distance B to C is 1/4 of the distance from A to B. The error in reading of voltmeter. All right. फाइन. तो पहले अपन ये देखें, अगर वोल्ट मीटर नहीं होता, मतलब अगर हम एक्चुअल सिचुएशन देखते जहां वोल्ट मीटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का है या वोल्ट मीटर है ही नहीं, लेट्स से, तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस जो बी से सी वाला पोर्शन है, उस पोर्शन का अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो ऑफकोर्स वो कंप्लीट रेजिस्टेंस का 1/4 होगा. तो कंप्लीट रेजिस्टेंस इज 12,000, तो उसका रेजिस्टेंस आपका 3,000 ओम आ गया. नाउ द वोल्टेज अक्रॉस दिस BC, that is of course this complete voltage AB upon 4. तो complete के across तो 220 voltage आने वाला था, ये upon 4 किया तो that comes out as 55 volt. तो ये तो actual scenario होना चाहिए था without a voltmeter. अब voltmeter अगर अपन यहां पे लगा दें तो ऐसे केस में we can see that ये जो BC वाला resistance है और ये जो voltmeter resistance है, they are in parallel. तो resistance BC is in parallel with resistance of voltmeter. अच्छा, इनका जो इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल, तो वी कैन सी दैट वी हैव दिस BC जो है उसका 3000 है. दिस 3000 इज इन पैरेलल विद 6000 विल लीड यू 2000 ओम. तो देन अकॉर्डिंगली दिस कंप्लीट पार्ट 2000 इट इज इन सीरीज विद दिस रिमेनिंग 9000. यू कैन सी B to C का रेजिस्टेंस अगर 3000 है तो रिमेनिंग AC का जो होगा वो 9000 होगा. तो ये जो 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सीरीज में, ये जो सीरीज में है 2000 ओम एंड 9000 ओम, उनमें स्प्लिट करना है. तो इफ आई स्प्लिट दिस 220 वोल्ट इन रेशियो 2:9, आई गेट द वैल्यूज एज 40 वोल्ट एंड 180 वोल्ट, जिसमें से इस कॉम्बिनेशन को 40 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा. सो नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस, द रीडिंग ऑफ दैट वोल्ट मीटर, दिस रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी 40 वोल्ट. अच्छा, आइडियली वो रीडिंग आपका 55 होना चाहिए था. तो अगर मुझे यहाँ पे परसेंटेज एरर निकालना है, तो दैट परसेंटेज एरर इज द डिफरेंस इन रीडिंग अपॉन द ओरिजिनल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय 100, विच अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी, जिसको सॉल्व कर रहे हैं तो दिस वैल्यू इट इज 15/55. सो वी हैव 300/11. तो 300/11 ये आपका अप्रोक्सीमेटली 27% के आसपास आएगा, नॉट एग्जैक्ट बट अप्रोक्सीमेटली 27% आ रहा है.
तो दैट इज हाउ वी कैन मैनेज सिचुएशन जहां पे अपन ने एक्चुअल रीडिंग निकाला, वोल्ट मीटर लगाने के बाद का रीडिंग निकाला एंड अकॉर्डिंगली फिर उसमें एरर कैलकुलेट किया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी which when passed through the resistor produces heat which is twice that produced by a steady current, right। अब जब उसमें एसी सर्किट है तो जब जो पावर का एक्सप्रेशन है दैट इज आई आर एम एस स्क्वायर आर एंड इट सेज दैट इज ट्वाइस ऑफ द स्टेडी स्टेट सिचुएशन, तो वो आई स्क्वायर आर होगी, तो इसमें आर कैंसिल हो गया एंड यू हैव आई आर एम एस इज इक्वल्स टू रूट टू टाइम्स आई। अब रूट टू टाइम्स ये आपका आई का वैल्यू जो है दिस इज 1.414, 1.414 मतलब वो रूट टू ही है, तो दिस गिव्स यू एज 2 एम्पियर एज द आरएमएस वैल्यू। तो वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ रेडियस ए गिवन है स्मॉल ए स्मॉल बी रिस्पेक्टिवली आर एट द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऑलराइट, बिल्कुल सिंपल है। देखिए कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल इज गिवन बाय सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। खैर इलेक्ट्रिक फील्ड से वी आर नॉट बॉदर्ड हियर। नाउ द क्वेश्चन सेज दोनों का वोल्टेज इक्वल है, तो वी हैव सिग्मा ए, रेडियस ऑफ ए जो है दैट इज ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा बी इनटू रेडियस ऑफ बी है दैट इज स्मॉल बी अपॉन एप्सिलॉन। दोनों के वोल्टेजेस इक्वेट किए एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी जो है वो आपका बी बाय ए के इक्वल आ रहा है विच इज गिवन इन ऑप्शन ए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पोटेंशियल का एक्सप्रेशन यूज करना था और पोटेंशियल्स इक्वेट करके हमें रेशियो निकालना है सरफेस डेंसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज्ड वायर्स विद लीनियर डेंसिटीज लैम्डा एंड 3 लैम्डा आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, डिटरमिन द स्लोप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो देखिए इसमें अगर अपन वायर्स को x और y एक्सिस के अलोंग रखें, दो इनफाइनाइट वायर्स एक तरह से अपन ने x और y एक्सिस के अलोंग रखे, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये अपन ने यहां पे एक लाइन ड्रॉ की जिसका इक्वेशन जो है दैट इज y इक्वल्स टू रूट 3x। तो अगर मैं इस लाइन पे कोई पॉइंट लेता हूं x, उसका x कोऑर्डिनेट अगर x है तो उसका y कोऑर्डिनेट एज पर दिस इक्वेशन रूट 3x होगा, ठीक है। अब हम लोग जैसे ये जो x एक्सिस के अलोंग वायर है इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इसका जो लैम्डा है दैट्स चार्ज डेंसिटी विच इज 3 लैम्डा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखूं नेट, तो यू कैन सी दैट ये जो x एक्सिस के अलोंग वायर है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखें y की तरफ आएगी बिकॉज इट इज रेडियली आउटवर्ड्स टुवर्ड्स द पॉइंट, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स y आएगी जे कैप में, और जो y के अलोंग वायर रखा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में आएगी, अगेन वो इस डायरेक्शन में होगी रेडियली आउटवर्ड्स टुवर्ड्स द पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले x कंपोनेंट लिखते हैं, इनफाइनाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 2k लैम्डा बाय r, तो इट इज 2k लैम्डा की जगह वी हैव 3 लैम्डा, और वायर का इस पॉइंट से, इस इनफाइनाइट वायर का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है दैट इज x एंड दिस इज इन आई कैप डायरेक्शन, प्लस फिर ये जो x एक्सिस के अलोंग इनफाइनाइट वायर है इसकी फील्ड इट इज 2k लैम्डा अपॉन इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से, दिस डिस्टेंस इट इज यू कैन सी रूट 3x एंड दैट इज इन j कैप। नाउ द क्वेश्चन सेज डिटरमिन द स्लोप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्लोप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ कोर्स द y component अपॉन x component। तो that y component by x component when divided it gives you 1 by root 3, common parameters cancel हो रहे हैं, 1 by root 3 upon 3, so this comes out as 1 upon 3 root 3 which is given in option C, right। तो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्शंस का केयर करके हमें EY by EX कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट पे चलते हैं। A particle A of mass m and charge q is accelerated through a potential difference 50 volt। पार्टिकल B 4m मास का है, चार्ज सेम है और 2500 से राइट रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। सो वेरी इजी क्वेश्चन, दिस लैम्डा इज h अपॉन mv, उस मोमेंटम को अपन लिख सकते हैं रूट टू एम के, और फर्दर अपन लिख सकते हैं इस k को एज q टाइम्स द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अब h कांस्टेंट है, q दोनों के लिए सेम है, 2 कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m इंटू v अंडर रूट। So we have lambda A upon lambda B as MBVB upon MAVA, right? Then MB, we have mass of particle B as 4m, then the voltage as 2500
upon mass of A as m and the voltage as 50. So this comes out as under root of 200. Under root of 200 is 100 root 2. Sorry, it's 10 root 2. राइट ये अंडर रूट ऑफ 200 आ रहा है, तो उसके हिसाब से अपन चले तो दैट कम्स आउट एज 10 रूट 2 इज 1.414 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 10 गिव्स यू 14.14 एज द करेक्ट आंसर व्हिच इज गिवन इन ऑप्शन डी. सो ओवरऑल अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. स्ट्रेट अवे नेक्स्ट पे चलते हैं. A current I is flowing through a loop. Magnetic field का situation आ गया. The direction of current and shape of the loop are shown. The magnetic field at the center. देखिए अब दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट विल बी इनवर्ड्स. ठीक है, इनटू द पेपर. और मैग्नेटिक फील्ड वी नो कि जो लूप का कंप्लीट लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट आई बाई 2r होता है. अब यहां पे दिस पोर्शन इज अ 3/4 सर्कल एंड दिस इज अ क्वार्टर सर्कल. तो अपन जब नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे दोनों के वजह से तो दैट इज अ 3/4 सर्कल और इज 3/4 टाइम्स म्यू नॉट आई बाई 2r, बिकॉज अंदर वाला जो लूप है छोटा वाला उसका रेडियस इज r, प्लस जो आउटर लूप है बड़े रेडियस का 2r रेडियस का दैट इज 1/4 ऑफ द कंप्लीट लूप. तो इट इज 1/4 ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2 टाइम्स 2r. राइट, तो अकॉर्डिंगली दिस वैल्यू वी कैन सी दैट ये म्यू नॉट आई बाय 2r तो कॉमन आ जाएगा एंड वी हैव दिस एज 3/4 प्लस 1/8. तो ये अपन इसको सॉल्व करें तो उसके हिसाब से दिस इज to 6 1 7 7 and this is 16. Right, I think I have solved it correctly. It's mu naught I by 8r and this is mu naught I by 16r. Right, fine. So this is 7 mu naught I. This is 7 mu naught I upon 16r. Fine. So this is the correct answer and the field will be, जैसा हमने discuss किया, is into the page. So searching for the option, it is into the plane of the paper and 7/16. This is the correct answer. So straightforward question based on magnetic field. Next पे चलते हैं. A small bead of mass 1 kg is free to move on a circular hoop. सर्कुलर हुप का सेंटर रेडियस वगैरह बता रखा है, ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेटिंग है, म्यू दे रखा है और मैक्सिमम एंगुलर स्पीड निकालना है सो दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन. ऑलराइट फाइन. अब इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में पॉइंट ऐसा क्रिएट होगा कि यहां पे ये जो बॉल है इस जगह, ये जब ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे घूमेगा तो दिस बॉल विल बी परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस वन. ठीक है, यहां से इसका जो रेडियस है वी आर गिवन दिस रेडियस एज स्मॉल आर एंड हमारा जो सर्कल यहां पे बन रहा है, लेट्स से दिस रेडियस इज कैपिटल आर, एंगल 45 डिग्री है, तो वी हैव दिस कैपिटल आर एज स्मॉल आर cos 45. ठीक है, दिस कैपिटल आर इज स्मॉल आर cos 45. नाउ जब ये बॉल इस जगह पे है तो वी कैन सी दैट एक तो इस बॉल पे यहां से नॉर्मल रिएक्शन लगाना है, एक ऑफ कोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें इस पे mg लगाना है, और अगर हम रिंग के फ्रेम से ही देखें, नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखें, तो एक हमें इस पे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना होगा दैट इज m ओमेगा स्क्वायर इनटू कैपिटल आर. कैपिटल आर क्यों? बिकॉज इस सर्कल का खुद का जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर. राइट, दिस रेडियस, द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस वन इज कैपिटल आर. तो उसके हिसाब से इफ वी मूव तो वी कैन सी दैट एक अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन बन रहा है और एक परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट वो नॉर्मल डायरेक्शन में बन रहा है. तो वी कैन सी दैट कि जिस तरह का मोशन ये परफॉर्म कर रहा है, अगर मैं इस फ्रेम से देखूं, नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखूं, तो ये अभी मूव नहीं किया है, इट इज अबाउट टू मूव, तो इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम. तो हमारा एक इक्वेशन जो आएगा वो इस तरह का बनेगा. देखिए n को बैलेंसिंग करें तो ये इक्वेशन बन रहा है, दिस n विल बी इक्वल्स टू mg cos 45 plus m omega square r sin 45. This is one equation. And along the tangent अगर देखें तो along the tangent that equation will be m omega square r cos 45 minus mg sin 45. This is the net force along the tangent. Now for object not to move, not to slide, this force along the tangent should be less than or equals to mu s n. ये इक्वेशन बनना चाहिए. देखिए परपेंडिकुलर टू दैट टेंजेंट इट्स देयर इज नो मोशन, तो ये मैंने फोर्स बैलेंसिंग किया हुआ है.
एंड अलोंग द टेंजेंट जो भी नेट फोर्स है दैट शुड बी लेस देन म्यू एस एन फॉर द ऑब्जेक्ट नॉट टू स्लाइड। तो उसके हिसाब से इक्वेशन जो बन रहा है दिस इज m ओमेगा स्क्वायर r cos 45 देन माइनस mg sin 45 लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस इज हाफ, n का वैल्यू हमने ऊपर निकाला हुआ है दिस इज mg cos 45 प्लस m ओमेगा स्क्वायर r sin 45 राइट। अब ये sin 45 cos 45 सब 1 by रूट 2 होंगे, वो सब कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया। सो अकॉर्डिंगली दिस इज ओमेगा स्क्वायर r minus omega square r by 2, so we have omega square r by 2 and that is less than or equals to m cancel हो चुका था, this is g by 2 plus it is 3g by 2, ये 2 भी cancel हो गया। so we have omega का value, this omega is less than or equals to 3g by capital R। now capital R is small r cos 45, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये स्मॉल r तो 1 दे रखा है, cos 45 1 by रूट 2 हो जाएगा, तो ये ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू जो आ रहा है दिस इज 30 रूट 2 अंडर रूट। तो उसके हिसाब से इफ वी सी दिस इज ऑप्शन डी राइट, ऑप्शन डी हमें 30 रूट 2 का अंडर रूट दे रखा है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड क्वेश्चन जहां पे हम इसी फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे थे, हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया, along the tangent equations लिखी जो म्यू एस एन से कम होनी चाहिए, along the normal अपन ने इक्वेशन लिखी जहां फोर्स बैलेंसिंग किया है और वहां से ओमेगा मैक्स कैलकुलेट हुआ है। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन हियर। नेक्स्ट, if a stone is to hit at a point which is at a distance d away and a height h above, then u का वैल्यू निकालना है राइट। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पर बेस्ड है। then when we write y equals to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta, so if we substitute the values of x y and all, so we have y as h, we have x as d, so this is d tan theta minus g d square, x की जगह d रख रहा हूं 2u square cos square theta। when we rearrange this term we can see u square की जो वैल्यू आएगी, थोड़ा rearrange करके इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू जो आएगी ये d tan theta minus h इधर आएगा and accordingly we can see we have the calculation as g d square, it will be g d square divided by, it will be 2 cos square theta multiplied by d tan theta minus h। इसको कंप्लीट रीअरेंज कर रहे हैं तो ये टर्म बन रहा है। नाउ व्हेन u अगर कैलकुलेट करेंगे तो d और cos थीटा तो अंडर रूट के बाहर आ गए एंड अंडर रूट के अंदर वी हैव g अपॉन दिस इज 2 d tan theta minus h। so if we search for the relevant option we get it in I think option B right, B में हमें मिल रहा है तो this is answer। तो just a direct application of the equation of trajectory, data substitution है, a very very easy question here right। then next पे चलते हैं, the surface of a certain metal is first illuminated with light 350 nanometer then with 540 and it's found that the maximum speed of the photoelectrons in two cases differ by factor 2। तो if this is let's say case 1 and this is case 2, तो आप देख सकते हैं पहले केस में लैम्डा कम है तो इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा होगी तो के मैक्स भी ज्यादा होगा। इसका मतलब फर्स्ट वाले का जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेकंड वाले से, अब देखो ये मैक्सिमम स्पीड 2 के फैक्टर से डिफर कर रही है, मैक्सिमम स्पीड नॉट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो स्पीड में अगर 2 का फैक्टर है तो काइनेटिक एनर्जी में 4 का आएगा, हाफ mv स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले में काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाले का 4 टाइम्स है। सो इफ वी राइट द इक्वेशन एज 1240 hc by lambda 350 and that is equals to 5 plus k1 and second के लिए equation लिखें तो it is 1240 upon lambda, it's hc by lambda, this is 540 and this is 5 plus k max, k max क्या लिखेंगे it will be k1 by 4। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो this is 4 5 minus 5, this is 3 5 and that will be equals to 1240 and this is 4 upon 540 minus 1 upon 350। now when this is evaluated, ये evaluation करना पड़ेगा, this phi का value it will turn out to be approximately 1.8 electron volt, though the question is calculative but it is a straightforward application of the photoelectric concept, so overall an easy question। next पे चलते हैं
राइट नेक्स्ट में एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस नो डिफ्लेक्शन इफ सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन, मैग्नेटिक फील्ड गिवन. Right, when it experiences no deflection, we know that for zero deflection we have a relation V equals to E by B. ये कैसे आता है? फोर्स बैलेंसिंग से आता है, QE equals to QVB से. तो V equals to E by B. तो यहां से V का वैल्यू मिल जाएगा. तो we have E as 3.2 into 10 to the power 5 and we have B का वैल्यू as 2 into 10 to the power minus 3. तो we have this 1.6 into 10 to the power 8 meters per second. This is V. Now it says when the electric field is removed, the electron revolves in a circle. We know that circle में अगर घूमेगा तो radius जो होगा that will be mv upon qb. So we have all that data. So this is 9.1 into 10 to the power minus 31 as mass. V की जगह we have 1.6 into 10 to the power 8 divided by qb. Q का value it is again 1.6 into 10 to the power minus 19 and B की जगह we have the magnetic field as 2 into 10 to the power minus 3. Now when simplified it is 9.1 upon 2 and then it is 19 and 3 as 22 and 8 30. This is 10 to the power minus 1 बच रहा है. So this comes out as 0.45, right? 0.45 meters is your answer. राइट तो अगेन इजी क्वेश्चन है बट मल्टी कॉन्सेप्ट है. पहले आपने फोर्स बैलेंसिंग किया लॉरेंट्स फोर्स वाली सिचुएशन से और फिर रेडियस का वैल्यू निकाला है बाय यूजिंग mv बाय qb, सो दैट कम्स आउट एज 0.45. सो अ गुड क्वेश्चन बट स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी से रिलेटेड ही था. नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट नाउ इन दिस क्वेश्चन इट सेज 4 holes of radius r are cut from a thin square plate of radius 4r of mass m. The moment of inertia about x-axis. राइट तो फर्स्ट थिंग अपन इस कंप्लीट शीट का मास जानते हैं कि ये एक कंप्लीट शीट थी तो इसका मास m था और साइड लेंथ 4r था. इट्स अ स्क्वायर. तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट शीट इट विल बी ma स्क्वायर बाय 12. तो ma स्क्वायर बाय 12 में मास वी हैव m, साइड लेंथ इज 4r का स्क्वायर अपॉन 12, सो दैट्स 16 mr स्क्वायर बाय 12. दैट मेक्स इट 4 mr स्क्वायर बाय 3. तो ये तो कंप्लीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया विदाउट कटिंग. अब किसी एक डिस्क का ऑब्वियसली कटआउट पोर्शन जो होगा वो एक डिस्क होगा. तो किसी एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालूं और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसको शिफ्ट कर दूं तो आप देखिए मास ऑफ कटआउट पोर्शन अगर पहले निकाला जाए तो वी नो दैट सिंस सरफेस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वी हैव मास ऑफ कटआउट अपॉन मास ऑफ कंप्लीट. तो इट विल बी सिग्मा टाइम्स ए ऑफ कटआउट अपॉन सिग्मा टाइम्स एरिया ऑफ कंप्लीट. तो कटआउट का जो एरिया होगा सिंस इट इज होल ऑफ रेडियस आर तो दैट विल बी पाई आर स्क्वायर एंड कंप्लीट का जो एरिया होगा दैट्स अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 4r. तो ये साइड स्क्वायर हो जाएगा तो दैट कम्स आउट एज पाई अपॉन 16. तो वी हैव द मास ऑफ द कटआउट पार्ट एज पाई m बाय 16. राइट नाउ the moment of inertia of one cutout disc. अब डिस्क में डायमीटर के अबाउट मतलब इस डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज mr स्क्वायर बाय 4. तो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑफ कोर्स mr स्क्वायर बाय 4. तो m कटआउट इंटू r स्क्वायर बाय 4 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम mr स्क्वायर और लगा रहे हैं दैट इज m कटआउट इंटू r स्क्वायर. So that comes out as 5m cutout into r square by 4. अच्छा ऐसे 4 डिस्क हैं तो आपका आई नेट जो होगा कटआउट का वो 4 टाइम्स करूंगा तो दैट विल बी 5m cutout into r square. Now the moment of inertia of the remaining disk will be the moment of inertia of the complete disk minus the moment of inertia of cutout. तो complete का moment of inertia हमारा 4mr square by 3 था माइनस कटआउट का इज 5. मास कटआउट का रखेंगे तो मास कटआउट का है पाई m बाय 16. तो दैट विल बी पाई m बाय 16 एंड इनटू r स्क्वायर. अब इसमें फर्दर अपन देखें तो कैलकुलेशन में वी हैव mr स्क्वायर तो कॉमन आ गया और mr स्क्वायर कॉमन आने के बाद ब्रैकेट में मेरे पास बच रहा है इट इज 4 बाय 3 इज 4 बाय 3 माइनस 5 पाई बाय 16. दिस इज द रिजल्ट. अपन ऑप्शन में देखें राइट तो ऑप्शन में ये नहीं आ रहा है कहीं पर भी बट द पॉइंट इज इसमें सिंस जो कैलकुलेशन किया हुआ है जो ऑप्शंस हैं
वो z एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करके गिवन है, बट क्वेश्चन में x एक्सिस बोला गया था, तो जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शंस में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो वी हैव हियर एज इनकरेक्ट ऑप्शंस, ये बोनस होना चाहिए इफेक्टिवली, तो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शंस, राइट, बट ओवरऑल गुड क्वेश्चन हियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। Two identical containers A and B having same volume and a final gas at same temperature have the mass m1 m2 respectively. The gas in each cylinder expands isothermally to double its volume. All right. तो अगर अपन ये वॉल्यूम डबल हुआ है तो प्रेशर हाफ होगा, तो कंटेनर ए में चेंज इन प्रेशर जो होगा दैट इज द इनिशियल अपॉन 2, बिकॉज पहले पी ए था बाद में पी ए बाई 2 हो गया, तो चेंज इज पी ए बाई 2 एंड दिस चेंज इज गिवन एज 300 पास्कल। तो यहां से आपका पी ए का वैल्यू तो 600 पास्कल आ गया, तो ये पी ए की वैल्यू मिल गई। नाउ वी नो दैट कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, तो प्रेशर जो होगा वो मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पी ए अपॉन पीबी विल बी इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी, एंड n जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दिस इज ma अपॉन mb विच इज गिवन एज 3/2, ये मास का रेशियो हमें गिवन है। सो अकॉर्डिंगली आपका pb का वैल्यू जो आ रहा है, दिस pb का वैल्यू इट इज दिस इज 2pa अपॉन 3, 2pa/3 आ गया। नाउ b में भी आइसोथर्मली प्रेशर को वॉल्यूम को डबल किया तो वहां भी प्रेशर हाफ होगा, तो डेल्टा pb जो होगा दैट विल बी pb/2, ये pb का वैल्यू है, इसको pb/2 कर रहे हैं तो ये pa/3 आ रहा है, और pa का वैल्यू 600 था, अपॉन 3 किया तो आपका ये आंसर 200 पास्कल आने वाला है। तो दिस इज द रिजल्ट, चेंज इन प्रेशर इन b इज 200 पास्कल। सो ओवरऑल एन इजी क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। An air column in a pipe closed at one end is made to vibrate in its second overtone। देखिए सेकेंड ओवरटोन अगर होगा, और अगर मैं इस ऑर्गन पाइप में लेट्स से प्रेशर के हिसाब से इसका डायग्राम बनाता हूं, तो प्रेशर के हिसाब से जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस फॉर्मेट का होना चाहिए, ठीक है। विल बी हैविंग 2.5 बॉक्स, तो ऐसे केस में इफ वी हैव दिस एज x इक्वल्स टू 0, वी हैव दिस एज x इक्वल्स टू l, तो ईच बॉक्स हैज अ साइज λ/2, तो λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/4, तो लेंथ ऑफ द पाइप जो होगा आई कैन राइट इट एज 5 λ/4, दिस इज वन थिंग। नाउ द इक्वेशन फॉर प्रेशर वी कैन राइट दैट डेल्टा P इज इक्वल्स टू डेल्टा P नॉट साइन kx, k की जगह वी हैव 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स x। अच्छा, जिस जगह पे हमें यहां प्रेशर निकालना है, इट सेज एंड करेक्शन को इग्नोर कर दीजिए, और मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड आपका ये है, और हमें मिडिल ऑफ कॉलम पे मतलब L/2 पे ये वैल्यू निकालनी है डेल्टा P की, तो दिस डेल्टा P नॉट साइन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू ये x की जगह L/2 आएगा, और L/2 मतलब ये इसका हाफ करना है हमें, तो इसका हाफ होगा 5 λ/8, तो अकॉर्डिंगली दिस इज डेल्टा P नॉट साइन, दिस इज लैम्डा कैंसिल होने के बाद दिस इज 5 पाई बाय 4, दिस इज पाई प्लस पाई बाय 4, तो ये 45 डिग्री ऐसे ही हो गया, तो दिस इज डेल्टा P नॉट अपॉन √2, तो दिस इज गिवन इन ऑप्शन ए, इट इज डेल्टा P नॉट बाय √2। तो दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम दिस वेव्स ऑर्गन पाइप प्रेशर फंक्शन रिकॉल करने का अपॉर्चुनिटी है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं, राइट। So the next question, right? Laws of motion. Two masses m and capital M are attached with strings as shown in figure for the system to be in equilibrium, right? तो equilibrium condition है इसमें, पहले अपन यहां पर ऑब्जर्व करें तो we have this tension as T here, ठीक है। यहां पे भी अपन टेंशन अगर ये T मार्क कर दें, तो इस ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम में अगर इस पॉइंट पे अपन देखें तो we have 2T sin 45 and that is balanced with mg, राइट। तो यहां से t का वैल्यू जो आपका आ जाएगा दैट इज mg/√2, राइट। तो t का वैल्यू इट इज mg/√2। देन आफ्टर दैट अब यहां पर अगर अपन इक्विलिब्रियम देखें तो इस जगह अगर अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखेंगे फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, सो अकॉर्डिंगली यहां पे जो एंगल है वो 45 है, उधर जो एंगल है दैट इज थीटा, तो लेट्स से इस जगह जो टेंशन है दैट इज सम t डैश, तो इक्वेशन क्या बनेगा, इट विल बी t डैश cos थीटा and that will be equals to t cos 45, because नीचे एंगल 45 है, यहां एंगल आपका थीटा है, तो उसके हिसाब से we can see this t dash cos थीटा का जो वैल्यू है it is t cos 45, राइट। तो ये t का वैल्यू मुझे पता है cos 45, यहां मैं 1/√2 प्लेस करता हूं तो ये mg/2 हो जाएगा, t dash cos थीटा इज mg/2, that is one relation।
फिर यहां पर इस m मास पे वर्टिकल इक्विलिब्रियम लिखें, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में डाउनवर्ड डायरेक्शन में वी हैव mg, प्लस देन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये t इसको नीचे की तरफ ही पुल कर रहा है, उसका एक कंपोनेंट विल बी t cos 45 डाउनवर्ड्स, एंड दैट विल बी बैलेंस विद t डैश sin थीटा जो अपवर्ड्स है, दिस इज t डैश sin थीटा अपवर्ड्स. So accordingly your t dash sin theta, it is mg plus t cos 45. Now we have t as mg by root 2 और t cos 45 की वैल्यू क्या है, mg by 2 है. तो अब अगर ये अपना सेकंड रिलेशन है, अपन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दें, दैट इज सेकंड अपॉन फर्स्ट, तो ये वैल्यू आएगी tan थीटा, बिकॉज ऑप्शंस में tan थीटा पूछा हुआ है. तो दैट कम्स आउट एज mg plus mg by 2 and that divided by mg by 2. तो उसके हिसाब से it is 2m plus m. अपन ऑप्शंस अगर कंपेयर करें तो इफेक्टिवली we have the result as, ये स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, 2 वाला फैक्टर, दिस इज 1 plus 2m by m, राइट. तो 1 plus 2m by m which is given in option A, राइट. तो ये लॉज ऑफ मोशन पे बेसिक क्वेश्चन ही था, बट हाँ डेफिनेटली दो इक्वेशंस दोनों स्ट्रिंग्स के लिए क्रिएट करनी थी, तो ओवरऑल गुड प्रॉब्लम है. The activity of a radioactive sample decreases to 1/3 of its original value in 3 days. All right. So we have activity. The formula is A equals to A naught times, or we can use R also. A equals to A naught times. Let's say अगर मैं R use करता हूँ, तो R equals to R naught times e to the power minus lambda t. We have the formula. So in 3 days it becomes R naught by 3. So R naught by 3 is equals to R naught into e to the power minus lambda 3. ठीक है. देन आफ्टर 9 days तो वी हैव r डैश इक्वल्स r नॉट टाइम्स e टू द पावर लैम्डा टाइम्स 9. अब ये जो टर्म है r नॉट तो ठीक है, दिस e टू द पावर माइनस लैम्डा टाइम्स 9 इट कैन बी रिटन एज दिस स्क्वायर, सॉरी क्यूब, e टू द पावर माइनस लैम्डा 3 का क्यूब. नाउ e टू द पावर माइनस लैम्डा 3 का जो वैल्यू है उसका वैल्यू 1/3 है, तो वो अपन यहां पे प्लेस करें एज 1/3 का क्यूब, तो दैट कम्स आउट एज r नॉट अपॉन 27. So that's 1/27 of the original value. तो ये एक बहुत रूटीन प्रॉब्लम है जो आप मल्टीपल टाइम्स न्यूक्लियर फिजिक्स और रिमेनिंग प्रोफाइल्स में ऑब्जर्व करते ही हैं. नेक्स्ट पे चलते हैं. द ग्लास ऑफ ऑप्टिकल फाइबर हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन, कोर एंड क्लैडिंग की बात हो रखी है, एंड व्हेन द सराउंडिंग मीडियम इज एयर द न्यूमेरिकल अपर्चर. नाउ दिस इज अ टर्म व्हिच इज वेरी रेयरली यूज्ड, तो ये आपको मेमोराइज करना है. द न्यूमेरिकल अपर्चर इज गिवन बाय this mu1 square minus mu2 square, mu1 is smaller, mu2 is greater, under root divided by mu naught. तो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बट वो एक्चुअली न्यूमेरिकल अपर्चर टर्म पता होना चाहिए, तो वो आपको फिर मेमोराइज करना रहेगा इसमें. इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस टर्म, दिस इज 1.55 का स्क्वायर माइनस इट इज 1.51 का स्क्वायर अंडर रूट, एंड दैट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट का वैल्यू इट इज 1. ठीक है, तो वो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बिकॉज सराउंडिंग मीडियम एयर है. तो यहां से जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपका न्यूमेरिकल अपर्चर का वैल्यू जो आ रहा है दैट्स अराउंड 0.35 व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड, व्हिच इज गिवन इन ऑप्शन बी. सो इजी क्वेश्चन है, बट ओनली व्हेन यू आर अवेयर अबाउट दिस टर्म न्यूमेरिकल अपर्चर. नेक्स्ट, liquid oxygen at 50 Kelvin is heated to 300 Kelvin at a constant pressure 1 atm. The rate of heating is constant. dq by dt जो है वो constant है, और ग्राफ देखना है टेम्परेचर और टाइम के बीच में. ऑलराइट. नाउ लिक्विड ऑक्सीजन जो है इसमें वी कैन सी दैट एट 50 केल्विन वी आर गिवन दैट इट इज इन लिक्विड फेज, एंड ऑफ कोर्स ये आपका 300 केल्विन पे इट विल कन्वर्ट टू द गैसियस फेज. तो अगर ये फेज चेंज हुआ है तो उस फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए. So that temperature is constant during that phase change. So there should be a horizontal section in the graph to represent a constant temperature. तो constant temperature वाला पार्ट, जैसे पहले तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, then we have a constant phase. तो वो पोर्शन अपन देखें तो it is given in option C, right? C में we have a perfectly horizontal section here. यहाँ पे horizontal section नहीं है, बाकी में किसी में भी नहीं है, तो C option will be the correct answer for phase change part. Next. Two spheres of same material having radii 1 and 4, temperature 4000 2000, ratio of energy radiated per second, right? तो Stephen's Boltzmann's law के हिसाब से H is sigma E A T to the power 4. प्रोपोर्शनलिटी देखें, एरिया को 4 पाई r स्क्वायर लिखोगे तो H की प्रोपोर्शनलिटी आएगी विद r स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 4.
So we have this ratio H1 upon H2 as R1 by R2 to ka square and T1 by T2 to the power 4. Now this R1 and R2 we have radius 1 and 4 meters, sorry. So 1 and 4 meters इसका square हो जाएगा and temperature we have 4000 and 2000 वो इसका to the power 4 होगा. So we have 16 by 16, ये तो ratio 1 आ गया, तो 1:1 आ गया. तो 1:1 अगर आपका P by Q है तो of course आपका P plus Q का जो value निकालना है this is 2. तो again a very very straightforward question from heat transfer. Answer आपका 2 आ रहा है. Next पे चलते हैं. Right. Now in this case it says a concave mirror of focal length 20 and a convex lens of focal length 10 are kept with their optic axis parallel but separated by 0.5 centimeter. I think it should be millimeters. Diagram में millimeters दे रखा है. As shown in the figure, the distance between the lens and the mirror is 10 centimeter. All right. Object का height दे रखा है और optical axis से distance दे रखा है. We need to find the length of the image. Fine. Using the standard direction system, तो पहले अपन अगर लेंस के लिए सिचुएशन सॉल्व करें तो लेंस के लिए v जो आएगा इट विल बी uf अपॉन u प्लस f. सब्स्टिट्यूटिंग u एज दैट -15, u का वैल्यू -15 है. फोकल लेंथ ऑफ द लेंस वी आर गिवन एज 10, देन दिस इज -15 प्लस 10. तो उसके हिसाब से आपका v का वैल्यू जो आ रहा है दिस इज -150 अपॉन -5, तो दैट कम्स आउट एज +30. ऑफ कोर्स यहाँ पे ये राइट साइड वाली डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है, इस तरफ पॉजिटिव लेना होगा वो स्टैंडर्ड कन्वेंशन के हिसाब से. तो +30 का मतलब हुआ दिस इज 20 सेंटीमीटर, दिस +30 फ्रॉम द लेंस. अब लेंस से 30 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहां मिरर से 20 सेंटीमीटर ही बचा. ठीक है. तो अब मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल हो गया और 20 सेंटीमीटर बिहाइंड है. तो अब मैं मिरर के लिए ये इक्वेशन अप्लाई करूं एज v इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस f. ये मिरर के लिए अप्लाई करें एंड सब्स्टिट्यूटिंग द डेटा वी गेट द वैल्यू ऑफ v एज -10 सेंटीमीटर. मतलब ये अब यहां राइट हैंड साइड पे बन रहा है. वर्चुअल ऑब्जेक्ट है बट रियल इमेज बन रही है. ये v की वैल्यू आ गई. Now we know that the net magnification is the multiplication of the two magnifications caused. तो इस लेंस का जो मैग्निफिकेशन था v by u के हिसाब से it is 30 by -15 v by u, और मिरर के लिए v और u हैं this 10 and u था 20, तो उसके हिसाब से आपका मैग्निफिकेशन -1 आ रहा है, मैग्नीट्यूड 1 है. तो द हाइट ऑफ इमेज इज ऑफ कोर्स द मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का हाइट हमें 3 mm गिवन है, तो आपका इमेज का हाइट यहाँ पे 3 mm आ रहा है. और यू कैन कैलकुलेट इट सेपरेटली एज वेल कि ये लेंस कितना हाइट का बनाएगा, फिर आप मिरर के मैग्निफिकेशन से उसको मल्टीप्लाई करोगे, इट्स वन एंड द सेम थिंग. आपका नेट रिजल्ट 3 mm बचेगा. इट्स द लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर, इट इज 3 mm. सो 3 इज द करेक्ट आंसर. सो इट्स अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम ऑप्टिक्स. नेक्स्ट पे चलते हैं. फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी U विथ डेंसिटी rho. U और rho का फंक्शन दे रखा है. द क्वेश्चन सेज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इसका मतलब u into rho is equals to constant. Now u जो है that is NCVT, तो we have t into rho is constant, और pm equals to this pm is equals to rho RT से हम जानते हैं कि अगर rho into t constant है इसका मतलब प्रेशर constant होना चाहिए. तो ऑफ कोर्स जो प्रोसेस हमें शो कर रखा है इट्स एन आइसोबारिक प्रोसेस. ये जो हाइपरबोलिक है ना A to B, ये आइसोबारिक प्रोसेस हो गया. नाउ we have this as a rectangular hyperbola, तो inversely proportional है. तो ये जब 2 है तब ये यहाँ पे 2 है, ये सॉरी जब ये 5 है तो यहाँ पे ये 2 है, तो जब ये 2 होगा तो ये यहाँ पे 5 हो जाएगा. तो इधर u का वैल्यू पहले 5 निकाल लिया अपन ने इस रिजल्ट से. अब अकॉर्डिंगली वी नो दैट वर्क डन जो होगा, सिंस आइसोबारिक है तो वर्क डन शुड बी nr डेल्टा टी, और डेल्टा u जो है दैट इज ncv डेल्टा टी. सिंस इट इज मोनोएटॉमिक गैस, cv की जगह मैं 3r/2 लिख रहा हूं and that into delta t. then nr delta t का वैल्यू अगर यहां से पिक करें इस जगह से, तो nr delta t का वैल्यू आ रहा है 2 delta u upon 3. अच्छा, डेल्टा u का वैल्यू a से b तक जाने में u का वैल्यू 2 था, यहां 5 हो गया, तो डेल्टा u का वैल्यू जो है वो आपका 3 यूनिट्स है. दिस 2/3, डेल्टा u is 3 यूनिट्स.
तो दिस एन आर डेल्टा टी कम्स आउट एज 2, तो वर्क डन आपका 2 जूल्स ही आ रहा है। ऑलरेडी डिटेल्स आपकी स्टैंडर्ड यूनिट्स में ही थी। तो अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, बट हाँ ये जजमेंट जरूरी था कि वो आइसोबारिक प्रोसेस है, वो अगर आपने जज कर लिया तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन देन। A stationary body explodes into 4 identical fragments such that 3 of them fly off in mutually perpendicular direction, each with the same kinetic energy. And all right, momentum conservation apply करें straight away because explosion situation है। तो Pi equals Pf में P initial is 0, P final में we have 4 identical particles, right? तो we have m v naught I cap, मान लो एक I cap में गया, दूसरा एक J cap में गया, तीसरा K cap में गया with the same velocity, right? एंड फोर्थ जो है वो अननोन है, उसको अपन v डैश वेक्टर मान लेते हैं। तो यहां से v डैश वेक्टर जो आ रहा है, दिस इज माइनस ऑफ v नॉट आई कैप प्लस v नॉट j कैप प्लस v नॉट k कैप। नाउ इफ वी राइट द मैग्नीट्यूड वी कैन सी v डैश जो है दैट इज √3 टाइम्स v नॉट, ये स्पीड की वैल्यू मिल गई। नाउ इफेक्टिवली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सप्लोजन इज द नेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। तो वी हैव 3 पार्टिकल्स जिनकी स्पीड v नॉट है, दिस इज हाफ m v नॉट स्क्वायर, and then we have one particle जिसकी speed √3 v naught है, तो it is half m √3 v naught square. Now each particle has energy e naught, so this comes out as 3 e naught here, और ये भी half m v naught square और √3 square हो रहा है, तो ये भी 3 e naught हो गया, तो this comes out as 6 times e naught, तो your answer it is 6, right? तो easy question है from the explosion scenario, momentum conservation, right? The last question, the lift ascends with constant acceleration a, then constant velocity, and finally stops. It's a routine language of kinematics. ऐसे cases में we usually draw a graph between velocity and time. तो velocity versus time में हमें given है कि पहले उसका velocity बढ़ा, फिर constant हो गया, and then retard होके वापस से stop हो गया. Then further the question says कि the total distance is 7 meters and total time is 8 seconds. So since acceleration और retardation rates same है, तो if this time is t naught, then retardation जो time होगा वो भी t naught ही होगा, और total time 8 seconds है, तो ये यहां से ये वाला जो portion है, this portion will be 8 minus 2 t naught. अच्छा, इसका acceleration 1 दे रखा है, तो v equals u2 plus at के हिसाब से ये जो velocity होगी वो a t naught होगी, मतलब 1 into t naught. And we know that since it's a vt graph, the distance is given by area. So this distance which is 7 meters, it is equals to the area of this rectangle, area of the trapezium in fact, it is half into sum of parallel sides. तो एक side तो है 8 minus 2 t naught plus पूरा दूसरा side है 8 seconds ये, तो sum of parallel sides into height जो है that is this a t naught, a is 1, तो ये height is t naught. इसको further solve करें तो ये आ रहा है 16 minus 2 t naught by 2, तो when simplified this is 7, 2 cancel कर दें तो we have this as 8 minus t naught, I think it's 8 minus t naught into t naught, right? तो quadratic equation बन रहा है, this is t naught square minus 8 t naught plus 7 is equals to 0, ये quadratic यहाँ पे फॉर्म हुआ है। अब उसके हिसाब से इसके फैक्टर्स अपन देखें तो we have t naught minus 7 into t naught minus 1 and that is equals to 0. अब ये t naught जो है वो 7 नहीं हो सकता बिकॉज टोटल ड्यूरेशन ही 8 सेकेंड्स का है, तो ये t naught 7 नहीं हो सकता है, तो यहां से t naught की वैल्यू जो आ रही है वो 1 आ रही है। अब t naught 1 है, बट द क्वेश्चन सेज कांस्टेंट वेलोसिटी से कितनी देर चला, तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, तो रिमेनिंग टाइम जो है जो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है दैट इज 6 सेकंड्स, तो द आंसर इज 6, सो दैट्स द करेक्ट आंसर हियर। फाइन, तो ओवरऑल जैसा हमने देखा इट वाज नॉट अ वेरी वेरी इजी पेपर, इट वाज बेसिकली अबव एवरेज पेपर, बट स्टिल कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ नए क्वेश्चंस इसमें सीखने मिले। So students, you keep working hard, you remain motivated, and just remember you can and you will. Thank you.